हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। तो हमें पता है अगर एक फंक्शन डिफाइन होता है फ्रॉम ए डोमेन टू आर तो इसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। सिमिलरली अगर एक फंक्शन डिफाइन होता है फ्रॉम ए डोमेन टू एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आर है तो इसे हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन आर है ये डिफाइन होता है फ्रॉम ए डोमेन टी विच इज सबसेट ऑफ आर टू रेंज आर ए। Usually, vector valued function written in the component forms like r of t equal to x1 of t, x2 of t, up to xn of t, where xi of t is a real valued function. तो यहाँ पर जो each component है ये एक real valued function. Example number 1, there is a function r defined on r2, r3, where r of t equal to t square sin t and e to the power t. तो यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट है टी स्क्वायर, सेकेंड कंपोनेंट जो है साइन टी एंड थर्ड कंपोनेंट जो है ई टू द पावर टी। सिमिलरली देयर इज ए फंक्शन एफ ऑफ टी व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम r2 व्हिच इज cos t एंड sin t। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थ्री डायमेंशनल वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के बारे में। तो जनरली जो कि डिफाइंड होता है r ऑफ t फ्रॉम r2 r3 which is written as component form like r of t equal to x of t, y of t and z of t, where x of t, y of t and z of t are components and these are real valued function. Next है limit of a vector valued function. Let r of t is a vector valued function from r to r3 which is x of t, y of t and z of t. Then we say that limit of r of t exists at a point t equal to a and the limit is l which is equal to l1, l2 and l3 if and only if limit of first component x of t at a equal to l1 and the limit of second component y of t at a equal to l2 and limit of third component z of t at a equal to l3. एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। Then the first question is limit of r of t at t tends to 0 where r of t is t square plus 1 sin t and e to the power t. The first component is t square plus 1, second component is sin t and third component is e to the power t. तो r of t का जो लिमिट होगा at t tends to 0, तो यहाँ पर हमें r of t गिवन है t square plus 1 and second component is sin of t. The third component is e to the power t. Limit at t tends to 0 of t square plus 1 is simply t की जगह हम 0 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 and limit t tends to 0 sin t is sin 0 जो होता है t की जगह 0 पुट कर लेंगे sin 0 हो जाएगा 0. Similarly the third component का लिमिट है at t tends to 0 e to the power t is e to the power 0 which is 1. So at t tends to 0, this first component tends to 1, this second component tends to 0 and the third component tends to 1. Then the limit t tends to 0 जो r of t होगा ये हो जाएगा 1 0 1 vector. Next question number 2, find the limit t tends to infinity of r of t where r of t is sin t divided by t e to the power minus t and tan inverse t divided by t. यहाँ पर जो लिमिट होगा at t tends to infinity r of t का, तो यहाँ पर हमें r of t गिवन है। फर्स्ट कंपोनेंट इज sin t divided by t and the second component is e to the power minus t and the third component is tan inverse t divided by t. तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंपोनेंट का लिमिट होगा t tends to infinity t tends to infinity sin t divided by t which is equal to, तो यहाँ पर देखो जो sin t है ये एक बाउंडेड फंक्शन है, ये लाई करता है इन बिटवीन -1 and 1
तो यहाँ पर साइन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1. तो सिंपली साइन टी बाई टी इज लेस देन इक्वल टू 1 by t and greater than equal to -1 by t. तो at t टेंस टू इंफिनिटी तो ये 1 by t जो है ये होगा 0 एंड ये -1 by t टेंस टू 0. तो बाय सैंडविच थ्योरम साइन t by t का जो लिमिट होगा at t टेंस टू इंफिनिटी ये हो जाएगा 0. सिमिलरली लिमिट ऑफ सेकंड कंपोनेंट at t टेंस टू इंफिनिटी जो होगा e टू द पावर माइनस टी, सिंपली t की जगह पर इंफिनिटी पुट कर लेंगे तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी जो होता है 0. सिमिलरली थर्ड कंपोनेंट जो होगा लिमिट एट t टेंस टू इंफिनिटी tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय t. एट t इक्वल टू इंफिनिटी tan इनवर्स इंफिनिटी जो होता है it टेंस टू पाई बाय 2 एंड t टेंस टू इंफिनिटी. तो पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0. एट t टेंस टू इंफिनिटी फर्स्ट कंपोनेंट tends to 0, second component also tends to 0 and third component also tends to 0. Then limit at t tends to infinity r of t जो होगा ये होगा 0 वेक्टर 0 0 0. नेक्स्ट जो है continuity of a vector valued function. Let r of t is a vector valued function which is defined as x of t, y of t and z of t. Then the function r of t is said to be continuous at t equal to a if limit of r of t at t tends to a exists and its limit equal to r of a. Or simply a vector valued function is continuous at t equal to a if and only if each component function is continuous at a. That means x of t, y of t and z of t is continuous at a. Next so है derivative of a vector valued function. Let r of t is a vector valued function which is defined as x of t, y of t and z of t. Then the derivative of r of t with respect to t is defined as component wise. Then the derivative of r of t dr by dt is derivative of first component, derivative of second component and derivative of third component. And the geometrical meaning of derivative here is derivative of vector valued function is the tangent vector of the curve at the point t. And if r of t represents the position vector of a particle, then r dash t, which is the derivative of r of t, represents the velocity vector. नेक्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. कंसीडर ए वेक्टर वैल्यू फंक्शन r of t इक्वल टू टी क्यू आई प्लस साइन टी जे प्लस e टू द पावर टी के. देन फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव r डैश t एंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव r डबल डैश ऑफ t. तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा r डैश ऑफ t इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कंपोनेंट्स. फर्स्ट कंपोनेंट जो है टी क्यू आई प्लस डेरिवेटिव इज 3t स्क्वायर आई. साइन टी का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है कॉस टी प्लस e टू द पावर t का जो डेरिवेटिव है e टू द पावर t के. जो r डबल डैश ऑफ t है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये होगा डेरिवेटिव ऑफ r डैश ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t. r डैश t का जो फर्स्ट कंपोनेंट है 3t स्क्वायर व्हिच डेरिवेटिव इज 6t आई. कॉस t का जो डेरिवेटिव है माइनस साइन t से एंड e टू द पावर t का जो डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा e टू द पावर t के. प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व वेयर द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इज r of t इक्वल टू t स्क्वायर i माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 3j प्लस 4 माइनस t स्क्वायर के एट द पॉइंट p0 इक्वल टू 4 माइनस 1 0. इन ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशन होता है at t equal to t naught, r equal to r of t naught plus t into r dash of t naught. तो यहाँ पर देखो जो r of t है ये है t स्क्वायर i माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 3j प्लस 4 माइनस t स्क्वायर के. यहाँ पर r dash t जो होगा ये हो जाएगा 2ti प्लस 1 बाई t प्लस 3 का होल स्क्वायर से प्लस माइनस 2t के. p नॉट इक्वल टू 4 माइनस 1 एंड 0. तो ये जो कंपोनेंट होगा r ऑफ t का जो कंपोनेंट होगा t स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1 4 माइनस t स्क्वायर इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस 3 इक्वेशन वी कैन गेट t नॉट इक्वल टू माइनस 2. एट द पॉइंट p नॉट जो t नॉट का वैल्यू होगा -2. तो r ऑफ t नॉट जो होगा सिंपली r ऑफ t की जगह पर
पुट कर लेंगे -2, तो ये हो जाएगा 4i माइनस जे प्लस 0 इंटू के। सिमिलरली आर डैश टी नॉट जो होगा सिंपली पुट कर लेंगे t की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा -4i प्लस जे प्लस 4k। देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन at p naught is r equal to r of -2 plus t into r dash -2। तो सिंपली इस यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू r ऑफ टी नॉट जो है 4i माइनस जे प्लस t इंटू r डैश ऑफ टी नॉट जो है -4i प्लस जे प्लस 4k, and this is the equation of tangent line of the vector at the point p naught. Next जो है integration of vector valued function. If the vector valued function r of t is x of t, y of t and z of t, then the integration is also defined component wise, where integration of r of t is integration of first component into I plus integration of second component into j plus integration of third component into k plus c, where c is the constant vector. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसीडर द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन r of t इक्वल टू ti प्लस cos tj प्लस e to the power t k, where t belongs to 0 to 1. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ r of t फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा 0 to 1 r of t का विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा तो कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेशन, तो ये होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t dti प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 cos t dt से प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e to the power t dt k। t का जो इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2 0 to 1 i प्लस cos t का जो इंटीग्रेशन होगा sin t फ्रॉम 0 to 1 से प्लस e to the power t का जो इंटीग्रेशन है ये होगा e to the power t फ्रॉम 0 to 1 k। तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2i प्लस साइन 1j प्लस e to the power 1 माइनस 1k प्लस c। नेक्स्ट जो है लेंथ ऑफ ए कर्व फॉर ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। Let r of t is a vector value function is defined as x of t, y of t and z of t, where t belongs to closed interval a to b. Then the length of the curve traced by r of t from t equal to a to t equal to b is given by integration from a to b norm of r dash of t dt. And here norm of r dash of t is equal to root over of x dash of t का square प्लस y dash of t का स्क्वायर प्लस z dash of t का स्क्वायर। तो ये जो कर्व का लेंथ का फॉर्मूला होगा ये पैरामीट्रिक कर्व का लेंथ का फॉर्मूला का बराबर होगा। तो ये l इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b रूट ओवर ऑफ x dash of t का स्क्वायर प्लस y dash of t का स्क्वायर प्लस z dash of t का स्क्वायर। तो अगर आपको पता नहीं है पैरामीट्रिक इक्वेशन में आर्क लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं, तो ऊपर आई टैब पे जाकर आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व वेयर r of t इक्वल टू a cos t, a sin t एंड b t फॉर t बिलोंग्स टू 0 to 2π। तो यहाँ पर r dash of t जो होगा ये हो जाएगा माइनस a sin t, a cos t एंड b। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द कर्व जो होगा l इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2π नॉर्म ऑफ r dash of t dt, which is equal to integration from 0 to 2π root over of x dash of t का स्क्वायर प्लस y dash of t का स्क्वायर प्लस z dash of t का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2π रूट ओवर ऑफ माइनस a sin t का स्क्वायर प्लस a cos t का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर dt। यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 2 पाई। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी जो होगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर टी टी। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी फ्रॉम 0 to 2 pi which is equal to 2 pi root over of a square plus b square। आई होप वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।